یہ ناول شروع کرنے سے پہلے اس کے کچھ حصے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ ورکنگ لیڈی ہونا بہت اچھی بات ہے چچا جان، مگر تانیہ کا جاب کرنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ بڑے آرام سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا۔ تانیہ نے ابو کی دواؤں کا شاپر رکھتے پلٹ کر اسے گھورا۔ مائنڈ یو مسٹر نوفل، یہ جاب میں بہت پہلے سے کر رہی ہوں، اب تم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ تم نے تو تب بھی مجھے کچھ نہیں سمجھا تھا جب میں کچھ بھی نہیں تھا، اور اب تو میرے مقابل نوفل احسان ہے، ایک بزنس ٹائکون کا بیٹا۔ وہ کھول کر رہ گئی وہ بات کو کس سمت لے کر جا رہا تھا۔ تم خواہ خود کو بھی اذیت دیتے ہو اور مجھے بھی، اور میرا کچھ نہیں، کیا میں اذیت میں نہیں ہوں؟ تمہیں کسی اور کے حوالے سے دیکھتے ہوئے میرے دل میں جو طوفان اٹھتا ہے نا، وہ کسی دن سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت سا کمپلیٹ ناول آپ کے لیے حاضر ہے، جس کا نام ہے تم نے اقرار مانگا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، کمنٹ اور لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ ابھی تو خود تم نئے ہو، ہمیں سکھاؤ گے عشق کرنا، یہ کام ہم نے کیا ہوا ہے، یہ پانی ہم نے بھرے ہوئے۔ وہ اس قدر معنی خیز انداز میں گویا تھا کہ تانیہ کتنی ہی دیر تک لب بھینچے بس مینیو کارڈ پر نظریں جمائی بیٹھی رہی۔ پھر اس کی طرف دیکھ کر بے حد رسانیت سے بولی، وقت پانی بھر لینا ہی معنی نہیں رکھتا نوفل احسان، پانی کی بھی قسمیں ہوا کرتی ہیں، اور تمہاری بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک تم نے آلودہ پانی ہی بھرا ہے۔ صاف و شفاف، ٹھنڈا میٹھا، رواں چشمہ تو تمہاری راہ میں کبھی پڑا ہی نہیں۔ سوئے بوجھ اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں، جسے تم عشق و عاشقی کہتے ہو۔ تمہارے جیسے عاشق تو ایک اینٹ اٹھانے سے 10 ملتے ہیں۔ نوفل احسان کی آنکھوں میں اتری حیرت پر آہستہ آہستہ غصہ غالب آنے لگا۔ تانیہ مراد کی جسارت پر ششدر رہ گیا۔ اس قدر مکمل مرد، خوبصورتی سے لے کر ایجوکیشن پھر فیملی بیک گراؤنڈ تک زبردست، اس کو یوں لمحوں میں اڑانے کا فن یقیناً تانیہ مراد ہی کو آتا تھا۔ اس نے خود کو سنبھال کر ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلائی اور پرشکوہ انداز میں بولا، اب یوں تو مت کہو تانیہ مراد، ایک زمانہ جانتا ہے نوفل احسان کو، تم نے تو میرے اور ایک سڑک چھاپ عاشق کے درمیان لکیر تک کھینچنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ اتنی فرصت نہیں ہے میرے پاس۔ پھر سے مینیو کارڈ پر نظر دوڑانے لگی، اور اس کی یہی بے نیازی اور کھرا پن ہی تو نوفل احسان کو شدت سے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ مسکرایا اور اپنے مخصوص مسمرائز کرنے والے مدھم مگر جذبوں سے بھرپور لہجے میں بولا، تم لاکھ چھپاؤ چہرے سے احساس ہماری چاہت کا، دل جب بھی تمہارا دھڑکا ہے آواز یہاں تک آئی ہے۔ او گاڈ، بے ساختہ ہنس دی تھی۔ بہت سٹیمنا ہے تمہارا نوفل احسان، بہت پاورفل کوالٹی ہے یہ تمہاری، منٹوں میں فریق کو چت کرنے والی۔ اس کا انداز توصیفی تھا۔ وہ گہری سانس لے کر کوہنیاں میز کی سطح پر ٹکاتے ہوئے آگے کو جھکا اور قدرے سلگ کر پوچھنے لگا، آخر تم میرے کریکٹر کی طرف سے اس قدر مشکوک کیوں ہو؟ مشکوک؟ تانیہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا، پھر گویا تصحیح کرتے ہوئے بولی، میں 100% پر یقین ہوں نوفل، اس میں شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں کہ تم ایک فلرٹی ہو۔ اب تمہیں یقین دلانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا تانیہ؟ منگنی تو کر لی ہے تم سے، تم اب بھی بے یقینی کے جھولے میں جھول رہی ہو۔ میرے خیال میں اب کھانے کو کچھ منگوایا جائے، ویسے بھی میں آج پہلی اور آخری بار تمہارے ساتھ ڈنر پر آئی ہوں۔ اس نے اتنے سرسری انداز میں موضوع بدلا اور نوفل لب بھینچے اسے گھورنے لگا، اور ایسا ہرگز نہیں تھا کہ تانیہ اس کی نگاہوں کی خفا سی تفش سے بے خبر ہوتی۔ کیا چاہتے ہو نوفل؟ بے حد رسان سے پوچھا تو اس کی توجہ پر وہ یوں مسکرایا جیسے اس کے پھر سے اس موضوع پر آنے سے اس کی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ میں تمہیں وارن کرنا چاہتا ہوں، وہ پرندے جو آنکھ رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ لاپرواہی سے مسکرائی، بہت دلچسپی سے پوچھنے لگی، ویسے تمہارے دل و دماغ پہ عشق کا موسم سال میں کتنے ماہ تک رہتا ہے؟ یہ آنے جانے والا موسم نہیں ہے تانیہ مراد کہ سردیوں میں منجمد، گرمیوں میں پگھلا دینے والا۔ بہار میں سرسبز اور خزاں میں اجاڑ و بیابان۔ میرے نزدیک تو عشق کو یہ کمال حاصل ہے، وقت بے وقت اچھا لگتا ہے،
माय गॉड नौफल, तुम तो लग रहा है कि दीवान घोल के पी आए हो। यकीन करो आज मैंने लंच टाइम में कुछ भी नहीं लिया था। अब प्लीज़ ज़रा ज़िंदगी की तरफ लौट आओ। वो उकता गई थी। स्टूपिड, खाना पीना ही ज़िंदगी नहीं होता, वो झुंझला गया। अब तो मुकर रहे हो नौफल, तो मुझे यहाँ एक अच्छे से डिनर के लिए लाए थे और यहाँ आकर मुसलसल मेरा दिमाग खा रहे हो। इंगश्ते शहादत उठाकर तनबीही अंदाज में कह रही थी, इतनी अच्छी लगती हो ना बाज़ औक़ात, पता नहीं दिल क्या क्या चाहने लगता है। अपने पसंदीदा मूड में आकर वो हमेशा बहुत मुतमईन लगता था। तानिया बहुत अच्छी तरह जानती थी इसे खामोशी से सुने जाने का मतलब है अपनी बर्दाश्त का इम्तहान लेना, जिसे बहुत मुश्किल लगता था। कभी दूसरों के दिल का भी ख्याल कर लिया करो नौफल। अपने खूबसूरत जुमले के इस कदर झुंझलाए हुए ठंडे ठार असर ने नौफल को गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। मायूस होकर इसने वेटर को बुलाया और खाने का ऑर्डर देने लगा। तानिया ने भी सुख का सांस लिया था। मुझे ये समझ नहीं आती तानिया कि तुम चाहती क्या हो। अगर नौफल तुम्हारी तरफ से इकरार मोहब्बत चाहता है तो इसमें मुज़ायका क्या है। यह तो बहुत फितरी सी बात है। वो अपने दिल की बात सच्चाई से तुम्हें बताता है तो तुम्हें भी प्रॉपर रिस्पांस देना चाहिए। आयज़ा इसकी खालाजाद ही नहीं, इसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। इसके खलूस की तो वो हमेशा से मोतरफ़ थी, मगर ज़िंदगी में बाज़ मकाम ऐसे भी आते हैं जहाँ आपको दिल से ज़्यादा सच्ची गवाही और किसी की नहीं लगती। और इस वक्त तानिया मुराद भी ऐसे ही मुकाम पर खड़ी थी। बहुत गौर से आयज़ा की बात सुनने के बावजूद एक बार भी इसके दिल ने लब्बैक नहीं कहा था। सच्चाई। इसने बिलाखिर गहरी सांस अंदर खींची, फिर कदरे फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली, यही एक ख़ासियत तो इसके अंदाज से नहीं झलकती है। डफर हो तुम तानिया मुराद। आयज़ा चिढ़ गई थी। वो क्या पागल है, मजनू का जानशीं बना तुम्हारे पीछे फिरता रहता है। इसकी बातें, इसका अंदाज़ कुछ भी तुम्हें मुतासिर नहीं करता। वो बेबसी से बोली, पता नहीं आयशा, यकीन जानो मुझे ख़ुद भी समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों है। बस मेरे दिल से आवाज़ आती है कि अभी नहीं, ठहर जाओ। फिर बहुत से अल्फाज मेरे होंठों पर आकर बेजान हो जाते हैं और मैं इसे ये भी यकीन नहीं दे पाती कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर मैं इसका साथ दूंगी। फिर भी तानी, वो सामने बैठा तुम पर अपनी चाहतों के फूल लुटा रहा होता है और तुम बेजारी से इधर उधर देख रही होती हो। मोहब्बत को कम अज़ कम चेहरे से तो ज़ाहिर होना चाहिए। कहना ना कहना तो बात की बात है। जो दिखाई दे जाए वो मोहब्बत नहीं, दिखावा होता है। इसके मंतक पर झुंझलाते हुए आयज़ा ने अपनी पेशानी पर हाथ मारा था। तुम बस अपनी 60 की दहाई की मोहब्बत को दिल में दबाए हुए मर जाना। अभी कहाँ यार, अभी तो ये तय होना है कि मोहब्बत हो सकती है या नहीं। इसका गुंजलिक सा अंदाज़ आयज़ा को इसकी जहनी हालत की तरफ से मशकूक करने लगा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, वो बंदा इस काबिल है कि इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। वाकई। तानिया ने ताइदी अंदाज में सर हिलाए, फिर संजीदगी से बोली, मगर सबसे बड़ा मसला ये है कि ये बात वो बंदा ख़ुद भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो आयज़ा का ज़ब्त इसके मुकाबले का नहीं था, बमुश्किल ही नॉर्मल रह पाई थी। तो ये कि हर जगह अपनी पर्सनैलिटी कैश करवाने वाले नौफल एहसान को तो शायद मोहब्बत के हिज्जे भी ठीक से मालूम नहीं। वो तासुफ से बोली तो आयज़ा बेहद बेयकीनी से इसे देखने लगी। हवास में तो हो तुम तानिया, तुम्हारा मंगेतर है, 4 माह हो रहे हैं इस मंगनी को और तुम्हारे ख़यालात हैं इससे मुतालिक। खुदा के लिए आयशा, अब तुम लोग मंगेतरों के मुतालिक फ़क्त इस हवाले से सोचना छोड़ दो। बाद में भी तो प्रैक्टिकल एंड टिपिकल लाइफ ही रह जाती है। क्या पहले से तमाम सूरत-ए-हाल को गैर जानिबदारी से मद्देनज़र रखना बेहतर नहीं है। वो उकता गई थी। आयज़ा ने गुस्से से पूछा, मगर इस कदर बदगुमानी के बावजूद इस कदर करीबी रिश्ता निभाए जाना क्या दोगलापन नहीं है। बहुत से काम दूसरों की खुशी के लिए भी किए जाते हैं माय डियर। इसने गहरी सांस अंदर खींचते हुए मुस्कुराने की कोशिश की थी। आयज़ा तब उठी, ये काम नहीं है तानिया मुराद, बल्कि तुम्हारी आइंदा ज़िंदगी की इमारत की बुनियाद में रखी जाने वाली पहली ईंट है। और अगर पहली ईंट का नाम ही दोगलापन होगा, मुकम्मल इमारत का नाम तबाही बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं दोगलापन नहीं कर रही हूँ आयशा। इसके तंज है भरपूर अंदाज को तानिया ने बहुत हौसले से बर्दाश्त किया था। रिश्तों को उनका सही मुकाम देने के लिए उनकी फ़ितरत को भी समझना बहुत ज़रूरी अम्र है, मगर हर रिश्ते की फ़ितरत को समझना ज़रूरी नहीं होता। ये तुम्हारी मनता है आयशा, मगर मैं ज़ाहिर पर जान देने वालों में से हर किस नहीं हूँ। बेरूह अल्फाज सोए हुए जज्बात को छेड़ तो क्या, छू भी नहीं सकते। आयशा ने तंग आकर इसके सामने हाथ जोड़ दिए थे।
वर्किंग लेडी होना बहुत अच्छी बात है चचा जान, मगर तानिया का जॉब करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो बड़े आराम से अपने ख्यालात का इजहार कर रहा था। तानिया ने अब्बू की दवाओं को शॉप पर रखते हुए पलटकर इसे घूरा। माइंड यू मिस्टर नौफल, ये जॉब मैं बहुत पहले से कर रही हूँ, अब तुम इस पर एतराज़ नहीं कर सकते। देख रहे हैं आप कितना रोब जमाती है मुझ पर, अब्बू से शिकायत कर रहा था। उन्होंने सर के खफीफ से इशारे से तानिया को गोया मना किया था, और मेरी कोई बात भी नहीं मानती, मज़ीद फैला था। जब इस हक़ के काबिल हो जाओगे तब देखा जाएगा। अब्बू को दलिया खिलाने की खातिर उनके सीने पर नैपकिन फैलाते हुए लापरवाही से बोली, तो वो शिकायती नज़रों से अब्बू को देखने लगा। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाकर तानिया को रोका था। सर झटकते हुए उन्हें दलिया खिलाने लगी। कॉटन के सादा से कढ़ाई वाले आम से लिबास में मलबूस, बालों को क्लिप में जकड़े वो कोई ख़ास किस्म की लड़की नहीं लग रही थी, मगर इसकी ज़ात में मौजूद एतमाद और बेनियाजी ने इसमें बेहद कशिश भर दी थी। कम अज़ कम नौफल को तो चैलेंज ही लगती थी। इन दोनों के माबैन बहुत वसी तबकाती फ़र्क था, मगर इसके बावजूद वह कभी नौफल से मुतासिर नहीं हुई थी। बात करते हुए अपनी ज़ात पर इसका एतमाद काबिल रश्क होता था। अब और कितनी मिन्नतें करवाओगी, साफ साफ बताओ, कल आ रही हो या नहीं? कदरे खफासा हो गया। तानिया ने कोई असर लिए बगैर कहा, बिल्कुल भी नहीं। अब्बू ने अपना लरसता हुआ बायां हाथ इसके हाथ पर रख दिया तो वह इन्हें देखने लगी। इसी असना में अम्मी भी किचन से फरागत पाकर आ गई थी। क्यों खामखा बात का बतंगड़ बना रही हो? जब बच्चा इतनी मोहब्बत से बुला रहा है तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है जाने में? उनके अंदाज़ और अल्फाज ने नौफल को बहुत महसूस किया था, जबकि तानिया कोफ्त का शिकार होने लगी। अब्बू के हाथ का दबाव इसके हाथ पर और बढ़ा था। उन्होंने बहुत दिक्कत के साथ इस बात में सर हिलाया तो वो बेबसी हो गई। ओके, मैं कल आ जाऊंगी। ना, ख़ुद से बिल्कुल मत आना, ड्राइवर को भेजूंगा। फिलफौर इसे टोक गया था। क्यों? तानिया ने तेवरी चढ़ाई तो वो इसके सवाल को नज़रअंदाज करता अम्मी की तरफ मुतवज्जा हो गया। चची जान, आप भी ज़रूर आइएगा। कहाँ बेटा, अब इनको इस हालत में छोड़कर कहीं जाना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। वो दुखी हो गई थी। वापसी पर वो इसके पीछे दरवाजे तक आई थी। तुम कल ड्राइवर को मत भेजना, मैं खुद आ जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, मेरी मंगेतर रिक्शाई टैक्सी में आए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, सफ़ा चट अंदाज में बोला तो तानिया को इसकी सोच पर तासुफ होने लगा। इसने बेहद इत्मीनान से कहा, मुझे भी तुम्हारी गाड़ी से उतरते कोई खुशी नहीं होगी। मैं जो हूँ वही दिखाई देना पसंद करती हूँ। तुम जो हो ना। दांत पीसता इसकी तरह बढ़ा तो बेख्तियार 2 कदम पीछे हट गई। फिर दोस्ताना से अंदाज में बोली, आई एम सॉरी। क्या करूँ नौफल, बस मैं ऐसी ही हूँ। इसके अंदाज ने नौफल को भी मूड तब्दील करने पर मजबूर कर दिया था। तुम्हारा कसूर नहीं है लड़की, मैं ही पागल हूँ। कर कर के मिन्नतें तेरी आदत बिगाड़ती, दानिस्ता हमने तुझको सितमगर बना दिया। नौफल प्लीज़। वो कराही तो इसने कदरे झुक कर इंगश्ते शहादत से इसके नाक को छुआ। कल तुम्हें बहुत अच्छा लगना चाहिए। सॉरी भाई, मैं जैसी हूँ इससे अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग सकती। तुम चाहो तो अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कर सकते हो। इसने फ़ौरन हरी झंडी दिखा दी थी। बहुत बुरी हो तुम तानिया मुराद। इसके अनरोमांटिक जवाब पर वो सुलग उठा था। जितनी अच्छी शक्ल है कभी इतनी अच्छी बात भी कर लिया करो। सोचूंगी। इसके टालने वाले अंदाज पे सर झटकता और बाहर निकल गया। मुस्कुराते दरवाज़ा बंद करने लगी। अगले रोज़ वो इस आलीशान तकरीब में पहुंची तो लहजा भर को चकरा के रह गई। पहली नज़र में इसे यही लगा जैसे किसी गैर मुल्की फ़ैशन शो में आ गई। ख़वातीन तो अलग, मर्द हजरात भी फ़ैशन में एक दूसरे पर सबकत ले जा रहे थे। बेबाक कह कहे, मुतरन्नम हंसी और धीमे सुरों में बजता आर्केस्ट्रा माहौल को गरमाई दे रहा था। वो शायद यूं ही वसी और इस लॉन में किसी शनासा को ढूंढती रहती जब वो खुद ही इसकी तरफ चला आया। मगर इस चले आने से पहले वो जिस शोला ज्वाला की नीम बरहना शानों पर बाजू दराज किए खड़ा था, इसे भी तानिया ने अच्छी तरह देख लिया था। हेलो, इसके अंदाज में महसूस कुन गर्म जोशी थी। हैप्पी बर्थडे। तानिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे विश करते हुए तरोताज़ा सुर्ख गुलाबों का बुके और गिफ्ट पैक इसके हवाले किया था। थैंक्स ए लॉट। गिफ्ट और फूलों का नहीं, तुम्हारे यहाँ आने का। वो मुस्कुरा रहा था।
फिर इसे सर तापा देखते हुए बेहद साफ गोई से बोला, वैसे अगर तुम खुद पर इतनी ही मेहनत किया करो, बेहद खूबसूरत लग सकती हो। अब चाहे वो कितनी ही पुरेतमाद से ही, नौफल की जांचती निगाह इसे परेशान कर गई। मेरे पास इन फजूल एक्टिविटीज़ के लिए टाइम नहीं है। वो चिढ़ गई तो हल्का सा कहकहा लगाकर इसकी आंखों में झांकते अपने मखसूस साहिराना अंदाज में बोला, वैसे इतनी अच्छी तो ज़रूर लग रही हो कि मैं कह सकूं कि मुझे अफसोस है मैं शाहजहां न बन सका, वरना बनवाता कोई ताजमहल तेरे लिए। वो इसकी नज़रों के जाल में उलझी अपनी निगाह चुराती इधर उधर देखने लगी, तो ये देखकर इसे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई कि तकरीबन सारी ही निगाहें इन दोनों पर मरकूज़ थीं और रश के बजाय हसद से पुर थीं। ताईजान कहाँ हैं? उस तरफ। नौफल ने रोशनियों से जगमगाते स्विमिंग पूल के पास इशारा किया तो नज़रों में फासला माप कर रह गई। उनको छोड़ो, आओ तुम्हें दोस्तों से मिलवाऊँ। वह ऑफ़र कर रहा था, इसने नीम रज़ामंदाना अंदाज में सर हिला दिया कि अब वक्त गुजारी के लिए कुछ मसरूफियत तो चाहिए ही थी। मगर इसके दोस्तों में जाकर इसे अपनी नादानिस्ता गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। लड़कियों की बेहिजाबाना ड्रेसिंग और बेबाकाना अंदाज इसे नज़रें चुराने पर मजबूर कर रहे थे। वेरी प्रिटी। ये नौफल के दोस्त थे जो आधे तीतर आधे बुटेर की तफसीर अपने मुसलमान होने पर ज़बरदस्ती अंग्रेज़ियत की छाप लगाने पर तुले हुए थे। शी इज़ लुकिंग वेरी कूल। चंद ही मिनटों में इस पर कई बेहिजाबाना कमेंट्स पास किए गए थे और वह तासुफ से नौफल को देखती रही, जो खड़ा यूं तमानियत और तफाखुर से मुस्कुरा रहा था जैसे कोई इसकी मलकियत को सराह रहा हो। एक्सक्यूज़ मी। वो तेज़ी से पलट गई थी। इसे गेट की तरफ बढ़ते देखकर हैरान खड़े नौफल का सकता टूटा था। जब तक वो गेट तक पहुंचा वो बाहर निकल चुकी थी। ए तानी! तकरीबन भागता हुआ वो इसका हम कदम हुआ। वो नहीं रुकी, इसके सामने आ गया। तानिया को मजबूरन रुकना पड़ा था। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? वह हद दर्जा झुंझलाहट का शिकार था। मेरे साथ बहुत कुछ गलत है नौफल, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। अंदर ही अंदर सुलग रही थी। अब्बू ने तो अपनी बीमारी से हार मानकर भाई और भतीजे की बात रख ली थी। इसका दिल शुरू से ही मुतमईन नहीं था। भला नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी मिल पाए हैं? यह अचानक अब तुम्हें इस बात का एहसास कैसे होने लगा है? कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही हो? अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा था। तानिया से मख्फी नहीं थी। वहाँ पर कौन सी ऐसी लड़की थी नौफल जिसे लाकर तुम मेरे मुकाबिल खड़ा कर सको? सीने पर बाजू लपेटते हुए इसने इस कदर एतमाद से पूछा कि चंद सेकंड्स तक वो इसकी आंखों में झलकते इस तहज़ाइया को देखता रह गया। फिर संभलते हुए नागवारी से बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहाँ की हसीना आलम हो? हर वो लड़की हसीना आलम होती है मिस्टर नौफल एहसान, जिसके शरीफाना लिबास ने मर्दों की हरीसाना निगाहों को रोका हो और जिसके शानों पर किसी गैर नामहरम मर्द ने अपना बाजू दराज करने की जुर्रत ना की हो। उसके ठंडे लहजे ने नौफल को लाजवाब कर दिया था। अच्छा अब यूँ तो मत जाओ, मम्मी खफा होंगी। मुल्तजियाना अंदाज में कह रहा था। तानिया मज़ीद मुरव्वत निभाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। फिर कभी सही नौफल, अभी मेरा मूड नहीं हो रहा। लहजा भरी से देखने के बाद इसने गहरी सांस अंदर खींची थी। ओके, एज़ यू लाइक, मगर अपना मूड ठीक कर लो। मूड ख़राब तो नहीं, दरअसल ऑफिस से लौटते ही इधर आने की तैयारी शुरू कर दी थी। सब थकन हो रही है, घर जाकर आराम करूँगी। वह आराम से कह रही थी। नौफल इसके साथ चलने लगा। तुम्हें तो बस दूसरों का मूड ख़राब करना आता है। ऐसा तो कुछ भी नहीं किया मैंने, वहाँ से भी एक्सक्यूज़ करके ही आई हूँ। आम से लहजे में बोली थी और ये इसका अंदाज़ ही तो था जो नौफल को मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींचता था। कम ऑन तानिया, अगर मुझे सब अट्रैक्ट करता तो तुम यहाँ कहीं ना होती। अच्छा अब जल्दी से मुझे टैक्सी रोक कर दो। दूर ही से टैक्सी आते देखकर बउजलत बोली तो बदमज़ा होकर इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। हेलो मिस आदम बेजार। इस अचानक आमद से घबराकर इसने डायरी बंद कर दी। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? बिलाल अंदर चला आया था। तुम इतनी अचानक मत आया करो, किसी दिन मेरा हार्ट फेल करवा दोगे। पेन बंद करते हुए वो इसे वार्न कर रही थी। देख लेना, किसी दिन अचानक ही आ जाऊँगा तुम्हारी ज़िंदगी में। वो हमेशा की तरह पूरी यकीन अंदाज में कह रहा था। तानिया ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। कितनी आजिज़ हो तुम मोहब्बत से, देख लेना किसी दिन इस मोहब्बत ने तुम्हें आजिज़ कर देना है। वो अपनी गहरी सी आँखें इस पर जमाए चैलेंजिंग अंदाज में कह रहा था। इसके दिल के गहरे पानियों में भंवर पैदा होने लगे। एक तो तुम बक बक बहुत करते हो, आयज़ा की तरह।
خود کو سمیٹنے میں تو وہ اب یوں بھی ماہر ہو گئی تھی، فوراً ہی بات بدل گئی، اور وہ تو اس کے ہر انداز سے واقف تھا۔ اب بھی اس کے یوں پہلو بچانے پر مسکراتے ہوئے بولا، وہ کہہ رہی تھی کہ اب آنے کی باری تمہاری ہے، یعنی تم اکیلے ہی اپنی فضول سی شکل لے کر آ گئے۔ اس کی مسکراہٹ دبا کر کہنے پر وہ جیسے بہت صدمے کا شکار ہوا تھا۔ پتہ ہے بہت بڑے ہدایت کار کی آفر ریجیکٹ کر کے آ رہا ہوں، اور تم اسے فضول سی شکل کہہ رہی ہو۔ اس کی بات پر وہ اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولی، ظاہر ہے اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد تم فلم کے سیٹ پر لائن مین یا پھر چھوٹی کی نوکری تو نہیں کر سکتے نا۔ تم بہت بدتمیز ہو تانی، وہ بھی ہنس دیا تھا۔ میری اس اضافی خوبی پر روشنی ڈالنے کا شکریہ۔ آؤ اب اس مہربانی کے انعام کے طور پر تمہیں ایک کپ اچھی سی چائے پلواؤں، خوشگوار انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تانیہ، نوفل کا فون آیا تھا، تم سو رہی تھی تو اس نے جگانے سے منع کر دیا، کہہ رہا تھا کہ دوبارہ فون کرے گا۔ امی نے اسے دیکھتے ہی بتایا تو سر ہلا کر بلال کی طرف متوجہ ہو گئی، جو خاموش سا بیٹھا تھا۔ تمہاری جاب کیسی چل رہی ہے؟ بس ٹھیک ہی ہے، اکتائے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ وہ کیا نام ہے تمہارے دوست کا جس کی بہت بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے؟ سنا ہے کہ اس نے تمہیں بہت پاپولر کولڈ ڈرنک کا ایڈ آفر کیا ہے۔ وہ بڑی دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کا بھی موڈ بدلنے لگا۔ روفی، وہ تو بہت کہہ رہا ہے، اگر دل چاہا تو کر لوں گا۔ کم آن بلال، اتنا اچھا موقع مت گنواؤ، اور پھر خود سوچو تمہارا ایز اے ماڈل پاپولر ہونے سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا۔ میں سب کو بتا کر امپریس کروں گی کہ تم میرے کزن ہو۔ پل جوش ہو رہی تھی اور بلال ہنس دیا۔ فائدہ تو مجھے بھی بہت ہوگا، لڑکیاں ہر وقت میرے ارد گرد پھرا کریں گی۔ خیر اب ایسے بھی ہیرو نہیں بن گئے تم، بس تھوڑی سی شکل اچھی ہے۔ فوراً اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ جیلس ہو گئی ہو؟ بڑی یقین سے پوچھ رہا تھا۔ جی نہیں۔ ہاں بھائی، اس نے ہلکی سی متاسفانہ سانس بھرتے لطیف سا طنز کیا۔ نوفل احسان کے رنگ ڈھنگ دیکھ دیکھ کر تم میں سے جیلسی کا جذبہ ہی ختم ہو گیا، ٹھٹک گئی تھی۔ یہ نوفل ہمارے بیچ کہاں سے آ گیا؟ اور بلال کے ضبط کی بھی آخری حد یہی تھی، خوش دلی خوش مزاجی کے سارے لبادے پل بھر میں ہی اشتعال کی زد میں آ کر اتر کے۔ یہی تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں تانیہ مراد، کہ نوفل ہمارے بیچ کہاں سے آ گیا؟ بلال کے مشتعل سے انداز نے اسے ششدر کر ڈالا تھا۔ وہ بالکل ساکت بیٹھی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مزید کچھ کہے سنے بغیر تیزی سے اٹھ کے چلا گیا۔ بلال چلا گیا کیا؟ امی چائے لے کر آئیں تو اسے گم سم بیٹھا دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگی۔ ہاں، کوئی کام یاد آ گیا تھا اسے یکلخت تھی اپنے وجود میں تھکن ڈیرے ڈالتی محسوس ہوئی تھی۔ پاگل ہے بالکل۔ امی بڑبڑاتے تانیہ کے لیے کپ میں چائے نکالنے لگی۔ واقعی بالکل پاگل ہے۔ تانیہ کے پہلو میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ بہت فرصت کے عالم میں تھا۔ کمپیوٹر آف کر کے دانت پیستے وہ اس کی طرف پلٹی تھی۔ نوفل، خدا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنا ہی دیوان خانہ بند رکھو، ساتھ والے کیبن میں ساری آواز جاتی ہے۔ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ وہ شانے اچکا کر لاپرواہی سے بولا تھا۔ میں نے تمہیں آفس آورز میں آنے کو منع کیا تھا، تم پہ ذرا بھی اثر نہیں ہوا؟ جی بھر کر خفا ہو رہی تھی۔ باس کی بات اور تھی، مگر جب کبھی ان کا بیٹا آفس سنبھالتا تو سارا سٹاف بہت الرٹ اور کانشیس رہتا تھا۔ تمہارا آفس ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب تم جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ وہ بڑے آرام سے کرسی پر جھولتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فائلیں سمیٹتی وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ایکسکیوز می، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ اسے باور کروایا کہ وہ اسی انداز میں بولا، مگر میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ نوفل پلیز، میری بھی کچھ اصول ہیں جن کی خلاف ورزی مجھے کسی صورت قبول نہیں۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ موسم اچھا ہو رہا ہو، اتنا ہینڈسم بندہ ساتھ ہو تو لانگ ڈرائیو کی آفر ریجیکٹ نہیں کرتے۔ آئی ایم سوری، مجھے سیدھا گھر جانا ہے۔ ابو کی طبیعت رات سے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے چیزیں سمیٹ کر دراز لاک کرتے ہوئے صاف گوئی سے کہا تو وہ سنجیدہ ہو گیا۔ کبھی تو میری کوئی خواہش پوری کر دیا کرو، میری محبت کا یہ صلہ دیتی ہو، فقط بے رخی اور بے گان کی۔ نوفل پلیز، اب تم دوبارہ سے وہی ٹاپک لے کر مت بیٹھ جانا۔ تم میرے منگیتر ہو، کچھ عرصے بعد ہماری شادی بھی ہو جائے گی۔ محبت بات کا مسئلہ ہے، کم از کم میں ابھی سے لفظوں میں اس کا حسن ضائع نہیں کر سکتی۔
वो संजीदगी से कहती से जज्बाती होने से रोक गई थी। एक तो तुम्हें हंसाने में 6 घंटे लगते हैं, खफा होने में तो मिनट भी नहीं लगाती। बहुत जालिम हो तुम, ठीक से खुश भी नहीं होने देती। इसकी बातें, इसके अंदाज की दिलकशी, लबो लहजे का ज़ाहिरानापन और आंखों से झलकती सरमस्ती, कुछ भी तो नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं था। मगर तानिया सर झटकती उठ खड़ी हुई। तुम यूँ करो कि मुझे घर ड्रॉप कर दो, तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इसके मशरूत हल पर नौफल इसे घूर कर रह गया, मगर वो ये भी जानता था तानिया मुराद को इसकी बात से हिलाना एक मुश्किल मरहला है। खाला जान ने इसकी कुशादा पेशानी चूम ली तो खालू जान ने इसके ऊंचे लंबे वजूद को बाहों में भरकर अपनी मोहब्बत इस पर निछावर की थी। तानिया मुस्कुराती हुई खुशियाँ इकट्ठी करते बिलाल को देख रही थी। आयज़ा ने इसकी नई और पहले से बेहतरीन जॉब की खुशी में छोटी सी पार्टी अरेंज की थी। अम्मी तो थोड़ी देर बैठकर मुबारकबाद देकर चली गई, जबकि तानिया अभी यहीं मौजूद थी। इन लोगों की सादगी और मोहब्बत देखकर इसे नौफल की बर्थडे पार्टी याद आने लगी, जहाँ फ़क्त हविस व हरीस और मकरूह फरेब की चकाचौंध थी। इसके अंदर थकन और आज़ूदगी उतरने लगी। तुम कहाँ हो? बिलाल ने इसकी निगाहों के आगे चुटकी बजाई तो वो झींप सी गई। मैं यहीं हूँ, मुझे कहाँ जाना है? तो फिर अपना ये वादा याद रखना, इसकी आंखों में झांक कर कहते वो पलट क्या था। ये देखे बगैर कि इसके अल्फाज सुनकर यकलख्त किस कदर निढाल सी दिखाई देने लगी थी। शाम को वो खुद इसे घर छोड़ने आए। 15 मिनट की वॉक थी, सो पैदल ही चलती है। इसकी खामोशी बिलाल को बहुत महसूस हो रही थी। कुछ परेशान हो तुम? काफ़ी देर नज़रअंदाज करने के बाद अब वो ख़ुद को रोकने से कासिर रहा था। नहीं, वो मुख्तसरन बोली। तो फिर इतनी खामोश क्यों हो? ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही। हालांकि तुमने मेरा फेवरेट रॉयल ब्लू कलर पहना हुआ है। वो अब साफ़ तौर पर इसे चिढ़ा रहा था और वो वाकई चिढ़ गई। कभी अपनी शक्ल भी आईने में देख लिया करो, इसके लिए तो महजबीनों की आंखें ही काफ़ी हैं डियर कज़न। 1 माह के अंदर अंदर मेरे टीवी कमर्शियल ने धूम मचा दी। अगले 2 ऐड एक गैर मुल्की कंपनी के हैं। वो मुस्कुराहट दबाए कह रहा था, और इसकी बात का एक भी लफ्ज़ गलत नहीं था। वो नाक सिकोड़ कर बोली, इतने अच्छे तो नहीं लग रहे थे। एक लड़की को क्रिमिनल से बचाया, कोल्ड ड्रिंक उठाई और लड़की को वहीं छोड़कर वहाँ से चल दी है। यानी लड़की की कोई अहमियत ही नहीं, बस कोल्ड ड्रिंक में जान अटकी हुई है। स्टूपिड हो तुम, इतना ज़बरदस्त ऐड है। तुम वो वाहिद हो जो नुक्स निकाल दी हो। हालांकि सब ने मेरी इतनी तारीफ़ की है। वो जल के रह गया। तानिया का जी चाहा कहकहा लगा कर हंसते। लोगों का क्या है जी, वो तो चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। हमदर्दाना लहजे में कहा तो कदरे तवक्कुफ़ के बाद वो धीमे लहजे में आज़ुर्दगी समेट कर बोला, तुमने तो तब भी मुझे कुछ नहीं समझा था जब मैं कुछ भी नहीं था, और अब तो मेरे मुकाबिल नौफल एहसान है, एक बिज़नेस टाइकॉन का बेटा। वो खोल कर रह के वो बात को किस सिमत लेकर जा रहा था। शट अप बिलाल। बेबसी की इंतहा इसे गुस्से की इब्तदा तक ले आई थी। तुम खामखा ख़ुद को भी अजियत देते हो और मुझे भी। और मेरा कुछ नहीं। क्या मैं अजियत में नहीं हूँ? तो मैं किसी और के हवाले से देखते मेरे दिल में जो तूफ़ान उठता है ना, वो किसी दिन सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगा। वो मुश्तिल से मुट्ठियाँ भींचे गुस्सा ज़ब्त कर रहा था। तानिया अपना गुस्सा भूल कर इर्द गिर्द देखने लगी। उनका झगड़ा किसी को भी मुतवज्जा कर सकता था। क्या मसला है बिलाल? अच्छी खासी ज़िंदगी में क्यों खामखा की हलचल मचा रहे हो? कदरें नर्म पड़ गई थी। बचपन से जो ख्वाब में देखता आ रहा हूँ वो मुझसे छीन लिया गया है। तो बताओ अब किस मकसद के लिए ये ज़िंदगी खुशदिली से गुजारूँ? वो तल्ख होने लगा था। तानिया की हलक में आंसुओं का गोला सा अटक गया। बिलाल प्लीज़, ज़िंदगी में और बहुत सी खुशियाँ तुम्हारी मुंतज़िर हैं। वो इसकी बात काट गया। मेरी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ और ख़ूबसूरती तुमसे मशरूत है तानिया, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ, ज़िंदगी का बोझ ज़रूर है कंधों पर, जैसे बहुत से रिश्तों की खातिर ढो रहा हूँ। इसका ज़िंदगी से उकताया हुआ लहजा तानिया को खौफज़दा कर गया। बेख्तियार वो इसका हाथ थाम गई थी। ऐसी बातें मत करो बिलाल, ज़िंदगी में हर चीज़ तो हमारे लिए नहीं होती ना। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा तानिया मुराद। जिस ख्वाब के यकीन में मैंने एक उम्र गुजारती, इसे शराब समझकर भूल जाना तुम्हारे लिए तो आसान हो सकता है, मेरे लिए नहीं। वो इस कदर जनूनी और मोहब्बत में पागल लग रहा था कि तानिया का दिल सहम गया। इसका जी चाहा वहीं सड़क के बीचों बीच बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करते।
عجلت میں کیے گئے غلط فیصلے نے کتنے ہی دلوں کو توڑ ڈالا تھا۔ ایسا مت سوچو بلال، تمہیں کیا ضرورت پڑی اپنی زندگی برباد کرنے کی؟ میں بھی تو ایک اچھی زندگی گزارنے والی ہوں، پھر تم کیوں؟ اس نے ملتجیانہ انداز میں کہنا چاہا، مگر وہ تند و تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ گیا۔ تمہیں جیسی زندگی گزارنی ہے تم گزارو، میرا نہ تم نے پہلے کبھی سوچا تھا اور نہ اب سوچنا۔ بلال تم، اس نے رندھے ہوئے لہجے میں کہنا چاہا، مگر وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے بولا، گھر آ گیا ہے، تم جاؤ، اندر تو آؤ نا۔ خیال یہی تھا کہ اندر جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی، مگر وہ نفی میں سر ہلا کر واپس پلٹ گیا تھا۔ وہ وہی تانیہ مراد تھی، ایک عام سے سرکاری آفیسر کی بیٹی، مگر نوفل احسان کی نگاہ اس پر بہت خاص انداز میں پڑی تھی۔ تائی جان کا بزنس تائی جان کے بیوروکریٹ باپ اور بھائیوں کی وجہ سے جس سطح پر جا رہا تھا، اس کی بدولت وہ تمام غریب عزیز و اقارب کے ساتھ ساتھ اپنے سگے بھائی سے بھی دور ہوتے چلے گئے تھے۔ یوں ہی ایک نجی تقریب میں نوفل کا تانیہ سے ٹکراؤ ہوا۔ تب تک تانیہ کو آخری بار دیکھے اسے 10 سال ہو چکے تھے۔ تعارف سے پہلے وہ اسے قطعی پہچان نہیں پایا تھا۔ کیا کرتی ہو تم؟ یوں ہی مروتاً وہ پوچھ رہا تھا۔ جاب کر رہی ہوں، تکلفاً بھی نہیں مسکرائی تھی۔ MBA کرنے کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اسسٹنٹ مینیجر کی جاب کر رہی ہے۔ امی نے گویا اس کی بد اخلاقی پر اس کی قابلیت کا پردہ ڈالنے کی مقدور بھر کوشش کی تھی۔ تب نوفل نے غیر محسوس کن مگر جانچتی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ دل فریب نقوش اور کھڑی مغرور ناک کے ساتھ بالکل سادگی میں بھی نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں لگ رہی تھی۔ ابتدائی تعارف کے بعد ابھی وہ اگلا سوال کرنے ہی لگا تھا کہ وہ بعجلت ایکسکیوز کرتی، انتہائی جوش و خروش سے ہاتھ لہراتی اپنی کسی کزن کی طرف بڑھ گئی۔ نوفل احسان یوں ہی کھڑا رہ گیا تھا۔ بھلا آج تک ایسا کب ہوا تھا کہ کوئی لڑکی اس کی شخصیت کے ٹرانس سے بچ پائی ہو؟ یہاں تو جیسے نوفل احسان کی گرد بھی اسے چھو نہیں پائی تھی۔ تب اس نے تنفر سے سوچا، بعض ایسی بھی ہوتی ہیں، صرف ٹائم مانگتی ہیں۔ در حقیقت تانیہ کا لاپرواہ انداز اسے بری طرح چبھا تھا۔ ایک ایسا شخص جس کی ساری توجہ فقط لڑکیوں سے اپنی پرسنالٹی کیش کرانے پر صرف ہوتی ہو، وہ ایک بالکل عام سے انداز و ادا والی لڑکی کی اس گستاخی کو کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اسی روز سے اس نے تانیہ مراد کو اپنا چیلنج بنا لیا۔ ایک ایسا ٹارگٹ جس سے سر کرنا اس کا مشن بن گیا، مگر اگلے 3 ماہ میں وہ چکرا کے رہ گیا۔ نوفل کو لگا اس کا مشن اب فقط مشن امپاسبل بن کے رہ جائے گا، اور ان 3 ماہ میں نہ صرف اس نے چچا جان کے ساتھ تعلقات بحال کیے تھے، بلکہ وقت بے وقت ان کے ہاں آنا جانا بھی شروع کر دیا۔ اور اسے حیرت اس بات پر تھی کہ ان 3 ماہ میں تانیہ کے ساتھ اس کی گفتگو محض رسمی کلمات تک ہی محدود رہی تھی، اس سے آگے وہ ہاتھ ہی کب آتی تھی۔ آفس سے آنے کے بعد کھانا کھا کر تھوڑا ریسٹ کرتی، اس کے بعد چچی جان کے ساتھ رات کی کھانے کی تیاری، پھر ٹی وی دیکھنے کے دوران کبھی کبھار آفس ورک، اور اس کے بعد اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی۔ زندگی میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے تانیہ مراد، تم نے تو اسے صرف کام کرنا، کھانا، سونا ہی فرض کر لیا ہے۔ ایک روز نوفل کو موقع ہاتھ لگ ہی گیا تھا۔ میں تو ہمیشہ سے ہی ایسی ہوں، تمہیں کوئی اعتراض؟ اس نے حیران ہونے کے بجائے رسانیت سے کہتے نوفل کی طرف دیکھا تو وہ اس کے اعتماد کا معترف ہونے لگا۔ پھر ہونٹوں پر چارے والی دلکش مسکراہٹ بکھیر کر شکوہ کرنے لگا۔ بالکل ہے بھائی، اتنے دنوں سے تمہارے گھر آ رہا ہوں، تم سے اتنا نہیں ہو سکا؟ کزن نہ صحیح مہمان ہونے کے ناطے ہی سے کچھ اہمیت دے دو۔ وہ ہوا سے اڑتے بال کان کے پیچھے اڑستی بہت اطمینان سے بولی، مہمان وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھار آئے، تم تو روزانہ آتے ہو۔ اور کزن ہونے کے ناطے سے اہمیت دینے کا کیا مطلب ہے؟ جو رشتہ ہے وہ نہ تو میرے اہمیت دینے سے زیادہ ہو جائے گا اور نہ اگنور کرنے سے کم۔ تب صحیح معنوں میں نوفل کو احساس ہوا کہ یہ لڑکی سے خاصا ٹف ٹائم دے گی، مگر در حقیقت وہ نوفل کے بنائے گئے ایک ذہنی پیمانے پر اتنی کھری اتری تھی کہ وہ اس سے مدار بنائے اس کے گرد چکر لگانے پر مجبور ہو چکا تھا۔ چچا جان کو تو وہ یوں بھی اپنا گرویدہ بنا ہی چکا تھا، اب وہ اس پر بے حد انحصار کرنے لگے تھے۔ ہر کام میں اب بھتیجے کا مشورہ خاص اہمیت رکھنے لگا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ تانیہ کو گھریلو معاملات میں اس کی مداخلت پسند نہیں، مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ فی الوقت وہ چچا جان پر پوری طرح اثر انداز ہونا چاہتا تھا، اور اس میں کامیاب بھی رہا۔
ان کی زبان پر ہر وقت نوفل ہی کا نام رہنے لگا تھا، اور تب ہی شاید قسمت بھی نوفل کا ساتھ دینے پر تل گئی۔ مراد حسن کے جسم کی داہنی سائڈ پر فالج کا شدید اٹیک ہوا تھا۔ جان تو بچ گئی، مگر وہ بالکل مفلوج ہو کر بستر پر پڑ گئے۔ خالہ اور خالو جان نے ان کا پورا ساتھ دیا تھا۔ عائزہ اور بلال کتنی ہی دیر اس کا حوصلہ بڑھاتے رہے تھے۔ ان دنوں بلال جاب کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا۔ وہ آفس سے لوٹی تو اسے تایا جان اور تائی جان کی آمد کی خبر ہوئی، جو بند کمرے میں امی ابو کے ساتھ جانے کیا مذاکرات کر رہے تھے۔ وہ جانتی تھی ابو تانیہ اور امی کی طرف سے بے حد فکر مند رہنے لگے تھے۔ ایک چلتا پھرتا زندگی سے بھرپور شخص یوں بستر کر ہو کر رہ جائے، ساری دنیا سے کٹ جائے، تو وہ کیوں کر حوصلہ کر سکتا ہے؟ وہ بول نہیں سکتے تھے۔ ان کی آنکھوں سے ہر وقت نمی اور مایوسی جھلکتی رہتی تھی، اور جب کمرے کا دروازہ کھولا تب تانیہ کو پتہ چلا کہ اس کی قید کا وقت آ گیا ہے۔ وہ لوگ تانیہ کے لیے نوفل احسان کا پروپوزل لائے تھے۔ ابو کی بے بس کیفیت اور آنکھوں میں چمکتی نمی نے تانیہ کی ساری طاقت سلب کر لی۔ نفی میں ہلتے سر کو روک کر اپنی روح کی پوری طاقت صرف کر کے اس نے بمشکل ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر سر جھکا لیا، اور اسی وقت ہیرے کی قیمتی انگوٹھی اس کی انگلی میں آ گئی۔ خالہ جان کو خبر ہوئی تو تڑپ اٹھی، اسی وقت دوڑی چلی ہیں، مگر کیا جاتا، وقت ریت کی طرح مٹھی سے پھسل چکا تھا، اور تانیہ ہر طرف سے کان اور آنکھیں بند کیے اچھی بیٹی بننے اور باپ کو زندگی کی طرف لانے کے تگ و دو میں مگن تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا تانیہ؟ سب سے زیادہ مشکل اسے بلال کا سامنا کرتے ہوئے ہوئی تھی۔ وہ بے حد خائف سا تھا۔ اب چاہے دونوں کے مابین کبھی ان لطیف جذبات کا اظہار نہ ہو، مگر بچپن سے اب تک وہ دونوں بہترین ساتھی رہے تھے، ایک دوسرے کی توجہ کے عادی رہے تھے۔ ایک خاموش سا معاہدہ تو تھا ہی دونوں کے درمیان۔ نوفل احسان، تمہارے لیے اتنا اہم کب سے ہو گیا کہ تم نے مجھے ریپلیس کرتے ہوئے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کی؟ چند لمحوں کے لیے تو بولنا بھی بھول گئی، مگر عقل نے فوراً ہی دل کا ہاتھ تھام لیا۔ زندگی کے اس دور میں جب وہ خود غیر یقینی حالات میں سے گزر رہی تھی، کیسے اس کے ہاتھ میں امید کے ڈول تھما دیتی؟ اف، میں سمجھی پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس نے خود پر خوش باش سے تانیہ مراد کا خول چڑھایا تھا۔ بھائی، ہر لڑکی کی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو یہ وقت آتا ہی ہے۔ میری دفعہ ایسی کیا انوکھی بات ہوگی؟ یہ کہ تم نے مجھے اپنی زندگی میں سے کسی فالتو شے کی طرح نکال پھینکا ہے۔ وہ مشتعل ہو اٹھا تھا۔ میں تو تمہیں انوائٹ کرنا چاہتی تھی۔ عائزہ نے بتایا تم جاب کے سلسلے میں کراچی گئے۔ کوئی نمبر بھی نہیں چھوڑا تھا تم نے، ورنہ میں تمہارے بغیر یہ منگنی کیسے کر سکتی تھی؟ تڑپتے دل پر عقل کا پاؤں سختی سے جمائے وہ اس وقت اتنا ہی خوش دکھائی دے رہی تھی جتنا کہ اپنی پسند کا شخص ملنے پر کوئی بھی لڑکی خوش ہو سکتی تھی۔ وہ یکلختی ہار سا گیا۔ تم کر سکتی ہو تانیہ مراد، میرے بغیر تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ مزید کچھ کہے بغیر اٹھ کے چلا گیا، مگر اپنے دل کی تڑپ وہیں کہیں چھوڑ گیا جس نے اسی پل سے تانیہ مراد کے دل کو اپنی جگڑ میں لے لیا تھا، اور وہ احتجاج بھی نہیں کر پائی، بس تکیے میں منہ چھپائے بے بسی سے آنسو بہاتی رہ گئی۔ اگلے روز وہ آفس سے سیدھی خالہ جان کی طرف گئی تھی، حالانکہ کل کی پارٹی میں وہ شام تک یہیں رہی تھی۔ اس کے باوجود خالہ جان نے اسے یوں بھینچ کر پیار کیا جیسے وہ دنوں بعد آئی ہو۔ ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اسے تو ہمیشہ انہوں نے اپنے آنگن میں چلتے پھرتے سوچا تھا، کیسے لمحوں میں پرائی ہو گئی تھی۔ عائزہ کہاں ہے؟ اس نے ٹک کر بیٹھتے ہی پوچھا تھا۔ ابھی ٹیوشن والے بچے پڑھ کے گئے تو فوراً ہی سونے کو لیٹ گئی، ابھی جگا دیتی ہوں۔ وہ انہیں منع کر کے قدرے جھجک کر بولی۔ بلال آ گیا آفس سے؟ اپنے کمرے میں ہے، بتا کر رکیں، پھر شکایتاً کہنے لگیں، نہیں ملازمت ہے، اسے ذرا بھی احساس نہیں، آج آفس نہیں گیا۔ پوچھا تو بولا کہ جی نہیں چاہ رہا۔ تم ہی سمجھاؤ اسے، میری تو سنتا ہی نہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ پکایا کیا ہے؟ موضوع بدل گئی تو وہ بھی مسکراتی۔ تمہاری پسند کے قیمہ کریلے ہیں، آپ میرے لیے کھانے کا بندوبست کریں، میں ابھی ایک شیف بلال صاحب کے ساتھ لگا کر آتی ہوں۔ وہ بڑے لاڈ سے کہتی اٹھ گئی تو وہ مسکراتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ ٹھنڈی سی تاریکی میں تکیا منہ پر رکھے وہ بستر پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ ہلکی سی دستک دے کر وہ اندر آ گئی۔ وہ تکیا پرے کر کے آنے والے کو دیکھنے لگا۔ ابھی تک سو رہے ہو بھگوڑے؟ تانیہ نے اسے چھیڑنے کی خاطر لطیف سا طنز کیا تو وہ سلگ اٹھا۔
भगोड़ा मैं नहीं तुम हो। मैदान मोहब्बत में मुझे तन्हा छोड़कर तुम भागी हो, मैं नहीं। वो अब खुल्लम खुल्ला इजहार पर उतर आया था। तानिया ने इसका अंदाज और अल्फाज नज़रअंदाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारे ऑफिस से भागने की बात कर रही हूँ। तुम मेरी गार्जियन नहीं हो जो यूँ पूछगछ कर रही हो। सारी दुनिया से खफा लग रहा था। वो थक कर बिस्तर के किनारे टिक गई। क्यों सबको डिस्टर्ब कर रहे हो बिलाल? वो भड़क कर उठा था। क्या तकलीफ़ दी है मैंने किसी को? और तुमने जो मेरी पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब करके रख दी है वो कुछ नहीं तुम्हारे लिए। बावजूद ज़ब्त के तानिया की आंखों में धुंध सी उतरने लगी। मैंने क्या किया है बिलाल? इसके हारे हुए लहजे का भीगापन साफ जाहिर था। मैंने तो हमेशा ख़ुद को, अपने जज्बों को सेंध सेंध कर रखा, कभी किसी की पजीराई नहीं की। ख़ुद को हमेशा एक बेहद प्रैक्टिकल लड़की के रूप में ढाले रखा कि मैं ना तो ख़ुद अपनी आजमाइश चाहती थी और ना ही किसी दूसरे की। वो इसी मुश्तिल से अंदाज में इसकी बात काट गया। तुम कभी भी मेरे जज्बात से बेखबर नहीं थी तानिया मुराद। आंखें पढ़ने का फ़न तो मुझे भी आता है। तुमने कभी मेरी हौसला शिकनी नहीं की, मुझे कभी भी एहसास नहीं दिलाया कि राह मोहब्बत पर मैं तन्हा महव सफ़र हूँ। तुम्हें मैंने हर पल हर लम्हा अपने साथ पाया था, फिर कब और कहाँ तुम राह बदल गई और मैं तुम्हारी रिफ़ाकत के नशे में सरशार जान ही नहीं पाया। जब से नौफल इसकी ज़िंदगी में आया था, इसे यूँ लगने लगा था जैसे इसके तमाम जज्बात मुंजमद हो गए हों। इस सूरत हाल से घबरा कर इसने कई बार अपने दिल और जहन से रुजू किया, बेहद उलझ के रह गई। बिलाल की तवज्जो इसकी दोस्त थी अपनी जगह, मगर इसने कभी ऐसा कोई वाज़ेह इशारा नहीं दिया था कि वो कोई स्टैंड ले सकती। तभी तो वह अब्बू की ख्वाहिश के आगे ना चाहते हुए भी सर झुका गई थी, वरना अगर कभी बिलाल ने इसके आंचल से आस के जुगनू बांधे होते तो वह अम्मी से साफ लफ्ज़ों में बात कर लेती, क्योंकि वह जज्बात में धोखे की कायल नहीं थी। कोई भी नहीं था, सो इसने नौफल एहसान के लिए हाँ कर दी। ये तो अब एहसास हो रहा था कि वो था, वो हमेशा से था, लाशऊर में, दिल की गहराइयों में। मगर अब वो शऊर की सतह पर आकर जगमगाने लगा था, किसी रोशन सितारे की तरह। बिलाल अहमद का रद्द अमल तानिया को इसके अपने अंदर का पता दे गया था। दिल और जहन की कशमकश का वाज़ेह हल सामने आ गया था। वो क्या शय थी जो इसे नौफल एहसान की तरफ देखने से रोकती थी? वो बिलाल अहमद की जज्बों से पुर आँखें थीं। वो क्या शय थी जिसने इसे कभी नौफल एहसान के जज्बों की पजीराई नहीं करने दी थी? वो बिलाल अहमद की खामोश असर पजीर मोहब्बत थी। लम्हों में इसने गोया बरसों का सफ़र तय किया था। अगर तुम मेरी वजह से हर्ट हुए हो तो मुझे माफ़ कर दो, मगर मैं अपनी सफाई में इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर मुझे कभी तुमने किसी वादे के बंधन में जकड़ा होता तो आज शायद ये हालात ना होते। मगर अब ज़िंदगी को यूं ही चलने दो बिलाल। इसने ख़ुद को बहुत संभाल रखा था, मगर ये उफ्ताद बहुत अचानक और इसकी क़ुव्वत इस्तेदाद से कहीं बढ़ के थी। यही वजह थी कि इसकी आवाज़ का भीगापन छुपाई नहीं छुप रहा था। मैं हालात को यूं ही चलने भी देता तानिया। जब से नौफल एहसान की असलियत जान पाया हूँ, तब से मेरे अंदर एक आग दहक रही है। मैं जो अंदर से इतना फेयर होकर भी तुम्हें नहीं पा सका, तो वो करप्ट शख्स किस तरह तुम्हारा हकदार हो सकता है? तुम इस काबिल तो नहीं हो कि तुम्हें अंधे कुएं में धकेल दिया जाए। इसने अब खुद को काफ़ी हद तक संभाल लिया था। ये भी तो देखो बिलाल, मेरे इस फैसले ने अब्बू की सांसें आसान कर दी हैं। उनके अंदर फिर से जीने की आरज़ू हुमकने लगी है। वो जैसा भी सही, इस वक्त उनके जीने की उम्मीद बन के आया था। मैं कैसे उसे इनकार कर देती? मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ तानिया। तुम इस शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। तुम तो इसकी ज़िंदगी में होगी। तुम्हारे मद्दे मुकाबिल हर वक्त एक करप्ट औरत होगी, जिसे तुम्हें नौफल एहसान की तरह बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो सख्ती से बोला, मगर तानिया इस हकीकत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थी, इसीलिए खामोशी के एक वक्फे के बाद कदरे खुशगवार अंदाज में बोली, इतना ख्याल करने का बहुत शुक्रिया। अब फ़ौरन उठ जाओ, मैं तुम्हारे साथ खाना खा के ही जाऊंगी। ऑफिस से सीधी इधर आई हूँ। यूँ पल पल तुम्हारे साथ रहना, तुम पर कोई हक ना रखना मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तहान है तानिया। प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। वो लगी लिपटी रखे बगैर कहता उठकर बाथरूम में घुस गया तो इसे रोना आने लगा। या खुदा, मेरी आजमाइश कब तलक? खुद को संभालती हुई इसके कमरे से बाहर आ गई। खाला जान के साथ आयशा भी खाने पर इसके मुंतज़िर थी। बिलाल नहीं आया? अभी आ रहा है, कह रहा था कि भूख नहीं है। वह नज़रें चुराती आयशा के साथ बैठ गई। खुद इसकी अपनी भूख भी उड़ गई थी।
मगर अब मजबूरी में उनका साथ देना पड़ रहा था। साथ साथ वो आयशा की बातों का बेध्यानी में जवाब भी दे रही थी। बात सिर्फ इतनी सी है माहीन डियर कि बाहर चाहे जो भी अला बला खा के आओ, घर का खाना हमेशा एहतमाम और सलीके से पेश किया गया साफ़ सुथरा ही जी को भाता है। इसके सामने 5 स्टार या 7 स्टार वो जायका भूलने में देर नहीं लगती। वो अपने साथी के आस्तीनों से बेनियाज शानों पर बाजू दराज किए बड़े महसूस होने वाले अंदाज में कह रहा था। तानिया को ठिठक के रुक जाना पड़ा। तुम तानिया मुराद की बात कर रहे हो ना? वो वजाहत करने लगा तो लहजा बहुत लुत्फ़ उठाने वाला था। मेरी जान, सभी लड़कियां एक सी होती हैं, खूबसूरत लफ्ज़ों पर मर मिटने वाली, मखमूद नज़रों से मस्मराइज होने वाली, या तो झुक जाती हैं या टूट जाती हैं। यह अक्कड़ और तंतना सिर्फ दाम बढ़ाने की अदा है। और जहाँ तक इस अनबैलेंस रिश्ते की बात है, किस्सा कुछ यूँ है कि बाहर के रंगारंग खाने खाकर जब तबीयत उकता जाए तो घर का खाना खाने को जी चाहता है, चाहे वो बिल्कुल सादा ही क्यों ना हो। एक तकवीत मिलती है कि बहुत साफ़ सुथरा है। कभी कभार अनछुए जज्बों की बारिश में भीगने को दिल करता है, तो इसके लिए तानिया मुराद जैसी अनछुई मासूम सी बीवी का होना बहुत ज़रूरी है, जिसे अच्छी तरह से ठोंक बजा के देख लिया गया हो कि वो लफ्ज़ों के संगे मरमर से फिसलने वाली शय नहीं है। इसके बाद बाहर तो यूँ भी ऐश ही ऐश हैं। वो सब नौफल एहसान की अक्लमंदी से सख्त मुतासिर हो रहे थे। इस कदर घटिया अंदाज़े गुफ्तगू। तानिया सनसना उठी थी। इश्ताल की लहर सर से पाँव तक दौड़ी। इसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि इसके इस इकदाम का क्या नतीजा निकल सकता है। एकदम से उसके सामने आई जो प्रेम पंछी बने बहुत इंजॉयमेंट के मूड में थे। बहुत खूब, तानिया ने सुलगते लहजे में इसे दाद दी। हकीकतन वो गड़बड़ा गया। वो इस पार्टी में आने से साफ इनकार कर चुकी थी और अब इसे यूं सामने पाकर घबराना एक फितरी अमल था, वो भी ऐसे मौका पर जब वो जी भरकर बकवास कर चुका था। तुम्हारे ख्यालात जानकर मालूमात में बहुत इजाफा हुआ नौफल एहसान, वो चुपते लहजे में बोली। तो इसने संभलते हुए माहीन के शानों पर दराज बाजू हटाया था। तुम कब आई? मुझे पता ही नहीं चला। मैं उस वक्त आई थी जब तुम अपने नादिर ख्यालात का इजहार कर रहे थे, इस्तेहज़ाइया अंदाज में बोली थी। मैं आज बहुत सच्चे दिल से तुम्हारी तरफ पलटी थी। ख्याल था कि नई ज़िंदगी की शुरुआत सच्चाई और दोस्ती के रिश्ते से होनी चाहिए, मगर मेरा खुदा शायद मुझे मेरी नीयत का इनाम देना चाहता था। तुम किस कदर गलीज़ और गंदगी में लिथड़े दिखाई दे रहे हो नौफल। शट अप। दफ़तन गुर्रा उठा था। सब लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। यू शट अप, नौफल एहसान इससे भी ऊंची आवाज़ में बोली थी। तुम क्या समझते हो, बाहर के अला बला पर मुँह मार कर जब तुम लोग घर पहुंचते हो तो बहुत साफ़ सुथरा हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक तैयार खाना तुम्हारी टेबल पर पड़ा हुआ मिलता है। यू आर रॉन्ग। खुश फहमी है ये तुम्हारी और तुम जैसी सोच रखने वाले तमाम मर्दों की। जब खुदा ने कह दिया कि अच्छे के लिए अच्छा, गंदे के लिए गंदा, ईमान के लिए ईमान और कुफ्र के लिए कुफ्र, तो फिर तुम्हारी इस खुशगुमानी पर फ़क्त तासुफ़ ही होता है जब तक अपने कदमों को गलास्तों से पुर रास्ते पर से ना हटा लो। ये कभी मत समझना कि फूलों भरी रविश तुम्हारे कदमों तले आएगी। और मैंने बहुत सच कहा था नौफल एहसान, इसने तिमतिमाते चेहरे के साथ कहते इसके पहलू में खड़ी मॉडर्निज़म का नमूना बनी माहीन पर इस्तेहज़ाइया निगाह डाली। लहजा भर के तवक्कुफ़ के बाद बहुत इत्मीनान से बोली, तुम आज तक वाकई गंदे जौहड़ों से सैराब होते रहे हो क्योंकि तुम्हारा मुतम्मा नज़र सिर्फ प्यास थी। इसने कहते हुए अपनी उंगली में पड़ी अंगूठी निकाल कर माहीन की उंगली में डाल दी और आसान से बोली, मेरे ख़्याल में यह अब अपने असल हकदार तक पहुंची है। बहुत क्यूट लड़की है तुम्हारी, हम मिजाज जो हम ख्याल, तुम्हें यकीनन सूट करेगी। तानिया, वो अपनी जगह गड़ा हुआ था, हाथ उठाकर इसे कुछ कहने से रोक गई। मेरी एक बात उम्र भर याद रखना नौफल, हर लड़की झुकने या टूटने को तैयार नहीं होती। इनमें से बहुत सी तानिया मुराद भी होती हैं जो इज़्ज़त को हर हाल में ज़िल्लत पर तरजीह देती हैं, वरना ज़िंदगी तो आंखें और कान बंद किए सोने के निवाले खाकर भी गुजारी दी जा सकती है। वो जा चुकी थी। नौफल वहीं साकित खड़ा था, मुट्ठियाँ भींचे, दांतों पर दांत जमाए। क्या थी वो तानिया मुराद? एक आम सी लड़की जिसमें ना तो इसके गर्लफ्रेंड जैसी अदाएँ थी ना बेबाकी थी। फिर क्यों वो इसे इतना सर पे चढ़ा बैठा था? क्या आज वो इसे इस कदर जलील कर गई थी? महफिल पर छाई खामोशी से कोड़े रसीद कर रही थी।
एक्सक्यूज़ मी। माहीन की उंगली में पड़ी अंगूठी पे एक नज़र डालकर वो तेज़ कदमों से अंदर चला गया। जहन में हल्की सी सनसनाहट दौड़ रही थी। क्या वाकई मेरी राह में फ़क्त गंदे जौहरी? वो घर पहुंची तो बिलाल आया बैठा था, यूं ही नाराज़ खफा खफा सा। तानिया के होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई। आज़ादी का ताकतवर सा एहसास रगों पैर में ठाठे मारने लगा। सीधी उन्हीं की तरफ आई थी। अम्मी को इसके इतनी जल्दी लौट आने पर ताज्जुब हुआ तो इसने बिना हिचकिचाए तमाम बातें दोहराती। बेहद खामोशी महसूस करके ज़रा सी पलकें उठाकर देखा तो अब्बू की आंखों में चमकती नमी इसे बेकरार करने लगी। आप बिल्कुल भी अपसेट नहीं होंगे खालू जान? क्या तानी ने कुछ गलत किया है? बिलाल फ़ौरन सूरत-ए-हाल कंट्रोल करने लगा था। उन्होंने बदिक्कत तमाम नफ़ी में सर हिला दिया। तानिया ने उनका हाथ अपने होठों से लगा लिया। मैं तो पहले ही कहती थी, अम्मी ने तासुफ से कहा। तो बिलाल ने भी मासूमियत का शानदार मुजाहिरा किया। और वो जो मैं आपसे कहा करता था उसका क्या? अम्मी के बेसाख्ता हंसने पर वो वहाँ से उठ गई, मगर वो इसके पीछे इसके कमरे में चला आया। बहुत अफसोस हो रहा है मंगनी टूटने का, इसने दिल जलाने वाले अंदाज में कहा। तो तानिया ने भी कसर नहीं छोड़ी। बस किसी की बद्दुआएं लग गईं हैं। वो बुरी तरह ठिठका था। यानी तुम अब भी मेरी तरफ नहीं लौटोगी? वो बेयकीन था। वो नफ़ी में सर हिलाकर संजीदगी से बोली, अगर लौटूंगी तो तुम्हारी सैकड़ों फैंस मेरा दिल जलाएंगे। यकलख थी बिलाल ने अपने जहन की कसाफत छटती महसूस की थी। जेलस हो गई हो? इससे पहले भी पूछा था, मगर आज तानिया ने ईमानदारी से इस बात में सर हिला दिया। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मोहब्बत में जेलस होना कोई बुरी बात तो नहीं ना? आसूदा सी मुस्कुराहट के साथ बिलाल अहमद ने नफ़ी में सर हिला दिया। इसने डायरी खोलकर एक नया बाब लिखना शुरू किया था। तुमने इकरार मांगा है तो सुनो। दिल के सच्चे जज्बे इजहार के मोहताज नहीं होते। ये वो जज्बे हैं जो जुगनू बनकर आँखों में चमकते हैं, होंठों के गर्म गोशों में रहकर दिल में बसते हैं। तो मुझ में इसी तरह समाये हुए हो कि जैसे तारों में चमक, तितली में रंग। मेरा रिश्ता अटूट है, जिस्मो जान का है, जो जुड़ा रहे तो ज़िंदगी और टूट जाए तो मौत। इसने मोतियों जड़ी लिखाई में मोहब्बतों की माला पिरोई तो इसके शाने पर से झांक कर पड़ते बिलाल के होंठों पर आसूदा सी मुस्कुराहट फैल गई। ये नावल तो कंप्लीट हुआ। इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।